हेलो फ्रेंड्स, जैन 26 फाइनल सीए का आरटीपी जो है वो अपलोड हो चुका है। वही आरटीपी के क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले आप लोगों को केस सिनारियो 1 दिया गया है। पहले अपन पूरा केस रीड करते हैं। मिस्टर रोहन मेहता इज अ प्रॉपर्टी डीलर and also engaged in the business of constructing apartments. A search under section 132 in the business premise of Mr. Rohan was conducted on 10th December 2024. The last of the authorization was executed on 18th December 2024. The following facts were discovered during the search proceedings. Cryptocurrencies of 50 lakhs acquired in a year 21-22 and jewelry worth 30 lakhs acquired in a year 23-24. Out of this, Rohan could explain source of only 20 lakhs invested in cryptocurrencies and jewelry worth 10 lakhs purchased via NEFT payment. So दोस्तों इसमें से 20 lakhs का एक्सप्लेनेशन रोहन ने दे दिया है, 20 lakhs का, और ये जो ज्वेलरी परचेज किए उसमें से 10 lakhs का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, 10 lakhs का। ठीक है, आगे क्या लिखा है? फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड एन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 15 lakhs incurred in a year 22-23 towards foreign travel of family members. No proper source was explained. Loose papers indicated receipt of 40 lakh rupees in cash for sale of flats during the year 2021. This amount was not recorded in books of accounts. It has come to the notice of the assessing officer that assessment for 23-24 was pending under section 143 subsection 3 on the date of initiation of search. The assessing officer issued a notice under section 158 BC for furnishing a return within 60 days. However, Mr. Rohan Mehta furnished the return after expiry of 60 days. The assessing officer, after considering evidence, determined the total income of 1.05 crores and proceeded to levy tax at the rate applicable along with surcharge and cess. ये 1.05 करोड़ कैसे आ रहा है? तो देखो इधर, एक तो ये क्रिप्टो करेंसी में 50 लाख डाला था, तो 50 लाख, पर उसमें से 20 लाख का एक्सप्लेनेशन असेसी ने दे दिया, तो ये 30 lakhs अनडिस्क्लोज्ड हो गया। फिर 30 lakhs माइनस 10 लाख रुपीस ज्वेलरी वाला 20 lakhs, 15 लाख के एक्सपेंडिचर्स ये वाले, एंड 40 लाख रुपीस जो है वो फ्लैट सेल करने से जो पैसा आया है वो, ये सबको आप ऐड करो तो आपका आंसर 105 आएगा, 105 lakhs, दैट इज 1 crore 5 lakhs. सो ये देखो 1.05 करोड़। आगे क्या लिखा है? एंड प्रोसीडेड टू लेवी द टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ सरचार्ज एंड सेस. ही ऑल्सो लेवीड interest at the rate of 2% of tax on undisclosed income for every month or part of the month for a period after expiry of 60 days and ending on the date of completion of assessment under section 158 BC. On 12th March 2025, Mr. Jeevan and Mr. Shivam purchased an apartment from Mr. Rohan Mehta for 70 lakhs. तो दो बायर्स हैं, दोनों ने 35 lakhs पे किया है रोहन को. The stamp duty value of the flat is 48 lakhs. This 70 lakh rupees का consideration includes 2 lakhs towards car parking and 50,000 towards maintenance fee. On 20th March 2025, ABC Private Limited bought back 50,000 shares, including 500 shares from Mr. Jeevan for 1250 per share. Mr. Jeevan acquired these shares for 200 per share in a year 2018. From the information given above, choose the most appropriate answer of MCQ 1 to MCQ number 5. चलो स्टार्ट करते हैं अभी। पहला पॉइंट, whether any tax is required to be deducted on purchase of apartment by Jeevan and Mr. Shivam.
सो हुआ क्या है दोस्तों, ये जो मिस्टर जीवन है एंड जो मिस्टर शिवम है, इन्होंने पेमेंट किया है किसको, मिस्टर रोहन को 35 टोटल 70 लाख का पेमेंट किया है। सो ये जीवन एंड शिवम जो है वो कौन है, ये दोनों पेयर है, पेयर। एंड ये जो है वो कौन है, रोहन। सो वो पेई है, पेई रिसीवर है रोहन। तो अब जीवन और शिवम को क्या कोई टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस। तो आप याद करो, आपने एक सेक्शन पढ़ा था 194 IA करके, 194 कौन सा सेक्शन था, IA। चलो मैं आपको 194 IA एक बार बता देता हूं। ये देखो 194 IA में क्या प्रोविजन था, तो अगर कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो जो पेयर है कंसिडरेशन का, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर कंसिडरेशन या एचडीवी इज मोर देन और इक्वल टू 50 लाख, और उसको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, 1%। और इसमें आप लोगों को याद हो तो अपन ने ये दो नोट्स भी पढ़ी थी, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स all the charges of the nature of club membership fee, car parking fee, electricity, water facility fee, maintenance fee, advance fee or any other charges of similar nature which are incidental to transfer of immovable property. So ये सब चीज़ों को भी हम consideration में include करेंगे। एंड नीचे वाला नोट पढ़ो क्या लिखा है, where there is more than one transferor or transferee in respect of any immovable property, then consideration shall be aggregate of the amount paid or payable by all transferees to transferor or all the transferors for transfer of such immovable property। मतलब इधर अपने को नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखोगे तो ये वाले केस में जीवन और शिवम ने मिलके 70 लाख का पेमेंट किया है, विच इज मोर देन 50 lakh rupees, and this 70 lakhs includes 2 lakh rupees towards car parking and 50,000 towards maintenance, तो वो भी इंक्लूड ही रहेगा। तो इस पे इन्हें 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, 1%। सो अभी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसमें आपका 4th आंसर आएगा, येस टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 1% ऑन कंसिडरेशन पेबल इंक्लूडिंग कार पार्किंग एंड मेंटेनेंस फीस बाय मिस्टर जीवन एंड मिस्टर शिवम। ये वाला पॉइंट देखना, बी वाला, इधर एक्सक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग नहीं, इट इज इंक्लूडिंग। सो ये आपका पहला एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। चलो दूसरा क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्लॉक पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 158B इन दिस केस। सो दोस्तों अभी सर्च हुआ था, तो सर्च में जिस साल में सर्च हुआ वो साल एंड उसके पहले के 6 साल का पीरियड कैन आई से इज कंसिडर्ड एज ब्लॉक पीरियड। अच्छा, बट जिस साल में सर्च हुआ है वो साल में जब से सर्च स्टार्ट, मतलब जो ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेके सर्च खत्म हुआ, वो आपका ब्लॉक पीरियड में आएगा। ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेके, जिस साल में सर्च कंडक्ट हुआ वो ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके आप लोगों का सर्च जब खत्म हुआ, दैट विल बी अ ब्लॉक पीरियड, एंड उसके पहले के 6 साल। सो करंट ईयर भी आएगा और प्रीसीडिंग 6 इयर्स भी आएगी, बट करंट ईयर कहां तक आएगा, तो ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके कब तक, जब तक सर्च खत्म नहीं होता तब तक। चलो अब सर्च देखो, सर्च अपना खत्म कब हुआ है, तो यहां पे देखो आपको टाइम लिमिट दी गई है, 10 दिसंबर को सर्च स्टार्ट हुआ था एंड लास्ट ऑथोराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 18th दिसंबर 2024। 18th दिसंबर 2024 में लास्ट ऑथोराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड। सो 10th से लेके 18 तक सर्च चला था, सर्च खत्म हुआ 18th, मतलब कहने से ये जो साल है वो कौन सा है, 24-25। 24-25 जो है वो आपका ईयर है। अब 24-25 तो ईयर कवर्ड होगा ही, 24-25 तो ईयर कवर्ड होगा अप टू द डेट ऑफ सर्च, मतलब सर्च कंप्लीशन। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 24 से लेके 18th दिसंबर 24, ये पीरियड तो आएगा ही, प्लस प्रीसीडिंग 6 इयर्स, प्रीसीडिंग 6 इयर्स आप लोगों को लेने हैं। इसका मतलब कहना इसे 23-24 प्रीवियस ईयर,
22-23 प्रीवियस ईयर, 21-22 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 20-21, 19-20 एंड 18-19। सो ये सारे प्रीवियस ईयर अपने को लेने पड़ेंगे। अब इधर आप देखो, आपको ये टाइम लिमिट जो दी गई है, ये थर्ड पॉइंट में सी ऑप्शन में, ये करंट ईयर में आपका जो ब्लॉक पीरियड है वो करंट ईयर भी तो आएगा ही, जिस दिन से ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेके सर्च खत्म हुआ तब तक, और उसके प्रीसीडिंग 6 ईयर्स। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर आपको असेसमेंट ईयर के टर्म्स में दिया गया है, असेसमेंट ईयर 1920 से लेके असेसमेंट ईयर 24-25 तक। सो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। यहां पे देखो, फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी था, सेकंड का करेक्ट आंसर सी है। चलो इसके बाद दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक असेसमेंट मिस्टर रोहन रिसीव्ड द फॉलोइंग डिफरेंट ओपिनियंस। पहला, पेंडिंग असेसमेंट फॉर AY 23-24 under section 143(3) on the date of initiation of search shall abate। मतलब जो असेसमेंट चल रही थी ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। दिस आर द ओपिनियंस विच आर रिसीव्ड बाय मिस्टर रोहन। नेक्स्ट, पेंडिंग असेसमेंट फॉर AY 23-24 under section 143(3) on the date of initiation of search shall continue and be completed under the said section only। ठीक है। The total income of 1.05 crores shall be taxable at normal rates। The total income of 1.05 crores shall be taxable at the rate of 60% plus surcharge and cess, and penalty under section 270A shall be applicable in respect of undisclosed income। You are required to choose the correct statement। अब देखो दोस्तों, जब भी सर्च होता है तो जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स पहले ही चल रही थी वो सारी क्या हो जाती है? अबेट हो जाती है, अबेट, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन तो आना ही चाहिए, वो करेक्ट लाइन लिखी है, ये गलत है। सेकंड जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है। अब जो आपकी टोटल इनकम है 1.05 करोड़, कैन यू से दैट थिंग रिप्रेजेंट्स योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। और अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर आपको टैक्स, याद करो, 60% लग जाता है, प्लस कंपल्सरी सरचार्ज ऑफ 25% एंड प्लस 4% सेस। तो नॉर्मल रेट तो नहीं लगता है वहां पे, ये नहीं लगता है नॉर्मल रेट। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला जो है वो फोर्थ। एंड फिफ्थ, पेनल्टी आपको 270A में नहीं लगता दोस्तों सर्च के केस में। तो आपका जो करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो है 1 and 4, और 1 and 4 इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। सो ये देख लो एक बार, आंसर इज सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, वेदर द इंटरेस्ट लेविड बाय AO इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम असेस्ड फॉर अ ब्लॉक पीरियड इज करेक्ट। सो ये जो AO ने 2% इंटरेस्ट लगाई थी ना इधर, ये 2%, क्या वो बराबर लगाई हुई है 2%? सो दोस्तों आप थोड़ा सा याद करो, इंटरेस्ट का जो प्रोविजन था ना, इंटरेस्ट का, वो ऐसा था कि इंटरेस्ट आपको है ना, इंटरेस्ट 2% नहीं लगती थी, इंटरेस्ट आपको लगती है 1.5%। ये देखो यहां पे आपको इंटरेस्ट जो लगती है वो 1.5% लगती है पर मंथ ऑन टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नोटिस पीरियड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। सो इंटरेस्ट जो है इन केस ऑफ सर्च कहने से आप लोगों को 1.5% लगती है। सो इधर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। यस, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2%, नहीं ये तो गलत हो गया क्योंकि इंटरेस्ट 1.5% लगती है। नो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ द टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैन बी लेविड for every month or part of the month after expiry of 60 days and ending on the date of completion of, you can say, assessment under section 158 BC। तो यही करेक्ट आंसर है आपका। डी में भी नहीं है, 1% लिखा हुआ है,
और ये जो आंसर है उसमें पीरियड देखोगे तो पीरियड गलत दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी। सो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जीवन। ये लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है ना अपने को यहाँ पे, कि जीवन जो है उसके शेयर्स बायबैक किए गए। आप याद करो, ये तो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों। आपको याद हो तो अपन ने 222F करके सेक्शन पढ़ा था। F, जब भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करेगी, जब भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करेगी, बायबैक होगा ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, तो जितना भी कंपनी ने आपको पैसा दिया दैट इज योर डिविडेंड, और आपका जो FVOC हो जाएगा क्योंकि आपके शेयर्स जाएंगे, आपका जो FVOC हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स दैट विल बी जीरो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। सो ये देखो 500 शेयर्स जीवन के थे, और जीवन के जो 500 शेयर्स थे उसके लिए उसको 1250 पर शेयर मिला है। तो 500 इंटू 1250 उसको 6,25,000 मिला हुआ है कंपनी से। दिस विल बी टर्म्ड एज डिविडेंड, एंड ये जो डिविडेंड है वो 222F के हिसाब से डिविडेंड है, और इस पे आपको अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा। और 500 इंटू 200 करो जो कॉस्ट थी, 1,00,000 रुपया आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, एंड असेट लॉन्ग टर्म है तो ये आपका लॉन्ग टर्म लॉस हो जाएगा। सो अभी देखो क्या है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। पहला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता दिया है हमें 525 का, तो ये तो गलत है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बताया हुआ है 1,00,000 का, एंड डीम डिविडेंड ऑफ 6,25,000, तो कहने से यही तो अपना आंसर आ रहा था, 625 का डिविडेंड और लॉस 1,00,000 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहां पे देख लो आंसर इज बी। सो ये आपका फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हुआ। सेकेंड केस स्टडी पे जाते हैं। मिस्टर अमित वर्मा, a person of Indian origin, resides in Dubai. However, in order to expand his consultancy profession, he keeps on visiting India frequently. He visits India for 90 days, 65 days, 70 days, and 80 days during the last 4 financial years preceding the financial year of 24-25. During the financial year 24-25, he stayed in India for 135 days. During his stay in India, he earned income of 9 lakhs from his consultancy profession. Dividend income of 2,15,000 and 18 lakhs as rental from a property in Mumbai. He earned 23,50,000 as consultancy income from Dubai, but not liable to pay tax in Dubai. He spent 2,400 to earn dividend income and 2,50,000 for consultancy profession in India. For convenient travel in India, he purchased a car on 15th May 2024 worth 11 lakhs from Fine Car Dealers Mumbai. He also purchased equity shares of Reliance for 425 on 5th May 2024 and sold on 24th December 24 for 6,15,000. Securities transaction tax was paid both at the time of purchase and sale of shares. While collecting information for filing income tax return for AY 25-26 on 15th July 2025, Mr. Amit Verma noticed that he had failed to claim a refund of 10,000, representing tax deducted at source by his client Aurora and Aurora Associates. During the year 22-23, he then approached a tax consultant, Mr. Jagat, to file an updated return for 22-23. Mr. Jagat assured him that the entire amount of TDS can be claimed by filing an updated return. Mr. Amit Verma is paying tax
as per default tax regime for the year 25-26. Based on the above information, choose the most appropriate answer to MCQ number 6 to MCQ number 10. क्या पूछा है पहले तो, what will be the residential status of Amit? What will be the TDS implication on purchase of car, TDS or TCS implication? फिर what is the total income of Amit, tax liability of Amit, and can Mr. Amit file an updated return on 5th April 2025 to claim refund of tax deducted at source? चलो ठीक है, तो पहले तो अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है अमित का। अब अमित वर्मा जो है, अमित वर्मा कौन है? अमित वर्मा पहले तो ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पहली चीज तो ध्यान में रखना। अब दोस्तों अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो इसके केस में अगर वो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए तो अपने को चेक करना पड़ता था इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? अगर इसकी टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs, तो याद करो तो इसको बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर मोर देन 15 lakhs है तो इसको बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा। ए में टाइम लिमिट 182 डेज था, वो सेम ही रहेगा, और बी जो है उसमें टाइम लिमिट जो आपका था वो था 60 डेज एंड 365 डेज, बट वो 60 कट होके 120 डेज हो जाता है। सो अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, हम आपकी क्या चेक करेंगे? पहले तो टोटल इनकम चेक करेंगे, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, तो अब आपकी इसकी टोटल इनकम देखना स्टार्ट करो, तो टोटल इनकम में क्या क्या चीजें आएगी पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। अभी इसका लास्ट 4 इयर्स का आपको स्टे दिया गया है। चलो 4 इयर्स मतलब करंट ईयर कौन सा है आपका? तो करंट ईयर इज 24-25, उसमें 135 डेज रुका है। उसके पहले के जो 4 साल है दैट इज 23-24, 22-23, 21-22 एंड 2021, ये 4 साल में क्या स्टे है? 90 डेज, 65 डेज, 70 डेज एंड 80 डेज, ये प्रीसीडिंग 4 इयर्स के आपको स्टे दिए गए। अब अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा? तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पर्सन जो है उसकी टोटल इनकम कितनी है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। अब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स में क्या क्या आएगा? जो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाती है, जो इनकम इंडिया में रिसीव होती है, और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आएगी विच इज अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। चलो पहले तो अब देखो, तो ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ही अर्नड इनकम ऑफ 9 lakhs फ्रॉम हिज कंसल्टेंसी प्रोफेशन। सो ये जो प्रोफेशन से इनकम आ रही है उसको, प्रोफेशन से, वो है 9 lakhs। बट फ्रेंड्स इधर देखो आपको क्या दिया है, 250,000 जो है 250,000 वो उसका खर्चा भी हुआ है प्रोफेशन की इनकम कमाने के लिए, तो 2.5 लाख रुपया आप उसमें से माइनस कर दो। सो 9 माइनस 2.5, 6,50,000 उसकी प्रोफेशन से इनकम हो गई। उसके बाद उसको डिविडेंड मिला है इंडिया से, डिविडेंड, तो ये 2,15,000 का उसको डिविडेंड मिल चुका। रेंट मिल रहा है, रेंट, सो 18 lakhs का रेंट है, माइनस हम करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 18 lakhs माइनस 30%, ये हो गया 12,60,000। प्लस दुबई से उसको इनकम आ रही है, तो ये इनकम तो हम समझ रहे हैं कि अक्रू एंड रिसीव बाहर ही हुई है। अब और क्या आ रहा है इसको? तो और देखो, इसने शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचने से इसको इनकम आई है। शेयर्स बेचे, परचेस किए थे 5 मई को, बेच दिए 24 दिसंबर को, तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। शॉर्ट टर्म 6,15,000 इज योर FVOC एंड 4,25,000 इज योर कॉस्ट। STT जो है वो माइनस करने नहीं मिलता है, कैपिटल गेन्स में अपन ने पढ़ा था, तो 1,90,000 तो ये हो गया।
तो अब आप उसकी इनकम देखोगे तो वैसे भी 15 लाख से ज़्यादा ही है। अच्छा, अब 15 लाख से अगर ज़्यादा है, 15 लाख से अगर इनकम उसकी ज़्यादा है, दिस इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, उसकी 15 लाख से ज़्यादा है, तो इसको बेसिक कंडीशन ए भी अप्लाई होता है और बी भी अप्लाई होता है। ए में क्या लिखा है, 182 डेज रहो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, और बी में लिखा है कि करंट ईयर में 60 डेज रहो एंड प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज रहो तो आप रेसिडेंट हो जाओगे। और ये वाले केस में ये 60 डेज के बदले 120 डेज हो जाते हैं, 120 डेज हो जाते हैं। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उस कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, जिसकी टोटल इनकम इज मोर देन 15 लैक्स, सो ये 120 डेज हो जाते हैं। अब तुम देखोगे तो 182 डेज भाई साहब यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, बट क्या 120 डेज रह रहे हैं? आंसर इज यस, 120 डेज रह रहे हैं। अब 120 डेज रह रहे हैं, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का स्टे ऐड करो, 80 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 90, तो ये हो गया 305 डेज। मतलब बेसिक कंडीशन बी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भाई साहब अभी क्या बन गए, नॉन रेसिडेंट बन चुके हैं। अब आपसे एक गलती जो यहां पे हो सकती है दोस्तों, आपसे एक गलती जो यहां पे हो सकती है, ये नॉन रेसिडेंट तो बन चुके हैं, बट अब आप क्या करोगे पता है, अब आप वो लास्ट वाला प्रोविजन याद करोगे, क्या, डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट में क्या था कि अगर आप नॉन रेसिडेंट बन चुके हो, लेकिन अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आपको कोई दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, तो फिर आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाते हो। बट दोस्तों वो प्रोविजन अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा कि ही विल बी नॉन रेसिडेंट ओनली। सो इधर देखो, MCQ नंबर 6 का आंसर इज ए, ही इज नॉन रेसिडेंट। उसके बाद व्हाट विल बी द TDS एंड TCS इंप्लीकेशन ऑन परचेज ऑफ कार। अच्छा, आपने इधर कार खरीदी थी, कार 11 लाख की कार खरीदी। अब ये 11 लाख की कार पे क्या इंप्लीकेशंस होंगे याद करो, तो 206C सबसेक्शन 1F करके सेक्शन है, 1F क्या दिया हुआ था 1F में, कि अगर आप कोई भी मोटर कार खरीदते हो 10 लाख के ऊपर, तो सामने वाला पर्सन आपसे सेलिंग प्राइस तो लेगा ही, जो भी मोटर कार का प्राइस है, प्लस आपसे 1% क्या कलेक्ट करेगा, TCS भी कलेक्ट करेगा। सो आपको TCS भी देना पड़ेगा। तो किधर कौन सा आंसर आएगा, सो देखो पहले तो 2 में नो लिखा है, तो इधर तो ये तो नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन द वैल्यू ऑफ कार एक्सीडिंग 10 लाख। 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 1% नहीं देना पड़ता अपने को, फुल अमाउंट पे देना पड़ता है, फुल अमाउंट पे देना पड़ता है। तो 11 लाख के ऊपर आप लोगों को 1% देना पड़ेगा। सो ये देखो, इसका करेक्ट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट MCQ नंबर 8, आप इसकी टोटल इनकम बताओ कितनी है, अमित की टोटल इनकम, अमित की टोटल इनकम। तो अब अमित की टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, तो कहने से अमित NR बन चुका है, तो NR बन चुका है तो जो इनकम इंडिया में अक्रू हुई, जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई, उसी पे टैक्स लगेगा। तो अब आप ये देखो, प्रोफेशनल इनकम जो इंडिया में आई 6,50,000, उस पे टैक्स लग जाएगा। डिविडेंड 2,15,000 पे टैक्स लग जाएगा। अच्छा, डिविडेंड कमाने के लिए कुछ खर्चे हुए थे, तो वो खर्चे नहीं मिलते हैं डिविडेंड में। जनरली तो आप लोगों को एक ही खर्चा मिलता है, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन ये पर्सन नॉन रेसिडेंट है, इसको तो स्पेशल रेट आ जाएगा 115A के हिसाब से 20% डिविडेंड के ऊपर। सो डिविडेंड के ऊपर स्पेशल रेट आ जाएगा, वो अपन देखते हैं। एंड 12,60,000 आपका रेंटल इनकम है और 1,90,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इसकी 23,15,000 यही इनकम टैक्सेबल भी हो जाएगी। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 23,15,000। उसके बाद दोस्तों, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमित फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, इग्नोर TDS एंड TCS इफ एनी कलेक्टेड और डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। अब तुम समझो, पहले तो आप ये मत भूलना कि ये केस में असेसी जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर जा रहा है, डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जा रहा है, तो अभी पहले तो इसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,90,000 का, वो कवर हो जाएगा, स्पेशल रेट पे चला जाएगा 111A के हिसाब से। और इस पे आपको कितना टैक्स लगेगा वो डिपेंड करेगा ट्रांसफर कब हुआ है। ट्रांसफर देखो 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है, तो इसमें आपको टैक्स लग जाएगा 20%। सो 190 पे 20% लग गया। अच्छा, नॉन रेसिडेंट है तो इसको डिविडेंड पे भी स्पेशल रेट लगेगा, वो भी हो जाएगा 20%। एंड अब जो उसका अदर इनकम बच गया, अदर इनकम में क्या क्या बच गया दोस्तों, तो एक तो रेंट 12,60,000 का और एक 6,50,000, 19,10,000 पे क्या लग जाएगा उसको, स्लैब रेट। स्लैब रेट तो पहले तो ये 190 पे आप टैक्स निकालो 20%, विच विल कम टू 38,000। 2,15,000 पे भी 20% निकालो, विच विल कम टू 43,000। एंड 19,10,000 पे आप स्लैब रेट निकालो। अभी जो डिफॉल्ट स्कीम के स्लैब रेट थे 0 से लेके 3 लाख, 3 लाख से लेके 7 लाख, 7 लाख से लेके 10, 10 से 12, 12 से 15 लाख एंड 15 लाख एंड अबाउ। तो इसमें से पहले मैं 15 लाख माइनस कर देता हूँ, उस पर 30% लगा देता हूँ, और जो आपका 15 लाख पे टैक्स आएगा वो 1,40,000 आएगा। तो ये हो जाएगा 2,63,000। 2,63,000 प्लस 43,000 प्लस 38,000, 3,44,000 आपका बेसिक टैक्स आएगा, और 4% HEC भूलना नहीं, 357,760 आंसर आएगा। चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। 357,760, 357,760। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्या मिस्टर अमित अपडेटेड रिटर्न फाइल करके दोस्तों रिफंड मांग सकता है? रिफंड अभी यहां पे उसको एडवाइस मिला हुआ है फ्रॉम अ मिस्टर जगत जो कंसल्टेंट है, और वो बोल रहे हैं अपन रिफंड लेके आ सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू। अब आप याद करो तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके कहने से आप रिफंड नहीं ले सकते, आप लॉस नहीं बढ़ा सकते, आप इनकम कम नहीं कर सकते हो। तो ये 10th जो पॉइंट है उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, नो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग रिफंड इवन इफ 24 मंथ्स टाइम लिमिट हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। सो यही करेक्ट आंसर है, 10th का फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। भले ही आपके पास टाइम है लेकिन आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो 8th का करेक्ट आंसर ए था अपना, यस ए था। फिर 9th का करेक्ट आंसर डी था, सो ये डी और ये ए। अच्छे एमसीक्यूज है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है एमसीक्यू नंबर 11। अब सारे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं। ऑन 2 Feb 2025 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ फिनटेक सोल्यूशन। ठीक है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बाइज अ प्रोडक्ट, इन्होंने परचेज किया फ्रॉम अ फिनटेक सोल्यूशंस। ठीक है, फिनटेक सोल्यूशन से प्रोडक्ट बाय किया है। फिनटेक सोल्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है? इन IFSC, वर्थ 63 लाख्स। तो ये ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोडक्ट बाय किया फिनटेक से एंड 63 लाख्स के प्रोडक्ट्स थे। फिनटेक का जो टर्नओवर था वो था लास्ट ईयर का 23-24 का 11.5 करोड़, और GPL का जो टर्नओवर था वो था 15.5 करोड़। अब ये बायर हैं और ये सेलर हैं। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना TDS आता है अंडर 194Q, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 206C1H के अंदर TCS आता है। अब आप अगर याद करोगे तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि बायर जो है अगर वो ऐसे पर्सन से गुड्स खरीद रहा है जो IFSC में लोकेटेड है तो इसको TDS काटने की जरूरत नहीं है, और इसको TDS नहीं है इसीलिए इसको TCS जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। So, अब from the above facts, which of the following options are true? Fintech solution is required to collect tax at source at the rate of 0.1% on 13 lakhs. So 13 lakhs 50 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट जाएगा
उस पे TCS या TDS भी आता है तो भी 50 लाख के ऊपर ही आता है, तो 13 lakhs पे 0.1% TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो MCQ है, नेक्स्ट ABC Limited was merged with XYZ Limited pursuant to an order of an High Court dated 10th August 2026. XYZ Limited has already filed its return of income of AY 25-26 under 139(3) before the date of order. On the date of High Court's order, the assessment of AY 25-26 was pending under 143(3). Which of the following are the compliance obligation on the successor entity and what is the fate of the pending assessment pursuant to the merger? अब यहाँ पे आपका सेक्शन 170A करके आता है, 170A। 170A क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी सक्सेशन हुआ है बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, तो पहले तो जो न्यू एंटिटी है उसको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न within 6 months from the end of the month, or that is August 2026। जिस मंथ में ऑर्डर आया ना वहाँ से 6 मंथ में क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और असेसिंग ऑफिसर विल प्रोसीड टू कंप्लीट द असेसमेंट इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मॉडिफाइड रिटर्न। सो मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे आपको असेसमेंट जो है वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो C है, दैट इज 1 and 2। एंड जो अपना इसके पहले वाला केस था उसका करेक्ट आंसर A है। सो ये देखो A। सो यहाँ पे आपके सारे MCQs जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब आप क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज टोटल इनकम का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने रीसेंट जो केस लॉ है वो यूज किया हुआ है ये पॉइंट के अंदर। सो यहां पे क्या हुआ है, असेसी जो है उसने लोन ली थी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था और इंटरेस्ट को उन्होंने पे किया बाय गिविंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स देके पेमेंट किया हुआ है तो वो अलाउड होगा। मैंने रीसेंट केस लॉस का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने ये केस लॉ आपको एक्सप्लेन किया है। सो ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ये अच्छा पॉइंट है। बाकी के पॉइंट्स मोर और लेस अपन ने देखे हुए ही है सारे। सो एक बार आप ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा ही क्वेश्चन है। ये आपका चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। और चैरिटेबल ट्रस्ट में अपन ने एक एग्जिट टैक्स करके पढ़ा था, एग्जिट टैक्स। वहाँ पे एक सेक्शन आया हुआ है 12AC करके, उसके ऊपर ये थर्ड पॉइंट है। सॉल्यूशन सारे इन डिटेल दिए हुए हैं, एग्जिट टैक्स करके आपने देखना है, एग्जिट टैक्स। फिर उसके बाद ये तो TDS पे क्वेश्चन है, ये सब पेनल्टी एंड असेसमेंट प्रोसीजर पे है। ये 44C के ऊपर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 19th क्वेश्चन, ये सेफ हार्बर रूल्स के ऊपर है। सेफ हार्बर रूल्स का मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है SV वर्चुअल्स की चैनल पे, आप वहाँ से ये सेफ हार्बर रूल्स देख सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो सेफ हार्बर रूल्स के प्रोविजंस आप देख लो, ये क्वेश्चन रीड कर लो, इजी में ये फटाफट से खत्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो ये आपके RTP में सारे क्वेश्चंस हैं। केस स्टडीज़ और MCQs के एक्सप्लेनेशंस मैंने दे दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बाकी क्वेश्चंस में वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ पे ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ।